immense pleasure to have you all as a part of VD family. Trust me, you won't regret being here. Till all the participants join us in the session, let me give you a little introduction about us. We have been conducting training for the corporate and coaching classes for the past 10 years. Our courses are designed in such a way that it not only gives you theoretical knowledge but also practical knowledge. This will enable you to work independently. Our faculties on board are all chartered accountants. The content is created and designed by highly qualified professionals from different fields of the market. All our courses are certified courses. On completion of the course, if you want, we provide placement assistance as well. Though we are here to help you, be assured that once you have completed the course with us, you on your own would be able to find an apt job as per the market standards. VD Learning Academy is known for maintaining relations with the student even after the course is completed. We are here to offer you lifetime assistance. At any point of time, you can contact us and we will provide you with the latest content of the module prevailing at that time. Good luck with this new venture of yours. Good evening, everyone. Welcome to the session. I hope you can hear my voice, so we can start our today's session. Okay, so I am audible to everyone, correct? Okay, great. Just give me another 30 seconds and I will be back. Just a 30 seconds. Yes, very good evening to everyone, each and every participant, those who are joining for the session. I hope it was a great day for everyone. I know it's a Monday and we have a lot of work in the office as well for each and everyone. But I'm glad that you have joined for the today's session. So welcoming you for you're the first official lecture of the income tax return filing. So very warm welcome to each and everyone. सभी लोगों से मैं I will take your introduction, those who are sitting for the first time with us and as well. Okay, so welcome to the session to each and everyone. So it will be today a part of the learning part as well, और as well as हम ये भी देखेंगे कि फ्यूचर में आप कैसे आपका प्रैक्टिस को ग्रो कर सकते हो एज यू आर ज्वाइनिंग फॉर द यू माइट बी ज्वाइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विद अस, और ये ऑलरेडी हमारे अपकमिंग कमिंग बैचेस के आप करंट स्टूडेंट्स हो, तो आप आपके प्रैक्टिस को कैसे एनहांस कर सकते हो, आप कैसे आपको जॉब को एनहांस कर सकते हो, हाउ यू कैन बिल्ड योर ओन प्रैक्टिस, आप खुद का प्रैक्टिस कैसे बिल्ड कर सकते हो. सो डायरेक्ट टिप्स विल बी कमिंग फ्रॉम माय साइड एंड अ फुल प्रूफ प्लान फॉर यू. सो अगर आपने नेक्स्ट 45 मिनट्स या 1 आवर अच्छे से पूरा सेशन को देखा, सो इट विल बी वेरी मच फ्रूटफुल फॉर यू बिकॉज यू आर स्टार्टिंग न्यू थिंग और ऑलरेडी यू आर इनटू सम न्यू थिंग, एंड इसमें से अभी आपको कैसे आगे प्रोग्रेस करना है, what are the points that you have to keep in your mind. So let's start our today's session. So just a quick introduction to everyone, those who are very much joining for the first time. So welcome to VD Learning Academy. I hope you know about us and about me as well.
if you not, so we will share you the orientation session, so which was conducted on Friday. So over there basically we just gone through the entire part of the we have gone through the entire part of the how the entire course is going to be conducted for you. So as you know, as a first we will go with the income tax module, then we will go with the TDS return filing, and between you will have great sessions of finalization, MIS, Excel and labor law, and in the last we will conduct the GST, that is Goods and Service Tax Act. So just I would like to know how many so आप लोग का जो ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सो आई ऑलरेडी नो यू, so it's for the new newcomers, just your name, your how many years of experience do you have and which city do you belong. ऑलरेडी अगर आपने ओरिएंटेशन में आपका इंट्रोडक्शन दे दिया होगा तो कोई बात नहीं, आप और एक बार इंट्रोडक्शन दे दो, तो उस तरीके से आपका नाम मुझे याद रहते जाएगा. So yes, quickly you can put your name, your how many years of कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है एंड आपका कौन सा सिटी है. Okay, so I will be reading your introductions, don't worry. Okay, so I'm getting your responses. Great. Okay, great. So I'm just reading by my side. Okay, Yogendra, you are from CA Fraternity. Great. So nice to hear about everyone. So I cannot take all the names, unnecessary. It will be just a repetitive part. I guess my voice is clear for everyone. Yes, are you able to hear my voice loud and clear? Okay. So Praneeth, please check the connection, internet connection from your side. So काफी बार आपको ऐसा होगा कि बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है बट हमें नहीं सुनाई दे रहा है, तो आपका बैंडविड्थ कम होगा या शायद आपके उधर कनेक्टिविटी का इशू होगा. सो जब भी क्लास होगा आई विल टेल यू दैट आपके फैमिली में 1-1.5 घंटा किसी को भी इंटरनेट यूजेज करने मत देना, आप मैक्सिमम उसका इंटरनेट यूज करना. सो मैं क्या करता हूँ, अगर बहुत ही इश्यूज आता है तो मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि काफी लोग वो बैंडविड्थ कैप्चर नहीं कर पाते अपने सेल फोन में. ओके, सो इफ इट स्टिल रेजिस्टिंग एनी टाइम, अगर मैं लॉग आउट हो जाता हूँ कोई कारण की वजह से, सो मैं इंटरनेट की वजह से, सो मैं फिर से लॉग इन हो जाऊंगा बिकॉज आई हैव बैकअप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन एज वेल. ओके, सो जस्ट वेट, डोंट पैनिक एट दैट पर्टिकुलर टाइम. वॉइस नहीं आ रही है, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो. द प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व ओवर हियर. ओके. So great to see you. And so okay, so now I will take you to the first part, that is the first topic, that is income tax e-filing. Now income tax e-filing, अगर मैं बात करूं तो इंडिया में आज के टाइम पर 6 से 7 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं. अब ये 6 से 7 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल तो करते हैं, बट इसमें से 3 से 4 करोड़ लोग ही टैक्स भरते हैं, बाकी सब लोग टैक्स नहीं पे करते हैं. दे आर नॉन टैक्स पेयर्स. ओके, सो टैक्स पेयर्स तो सभी लोग हैं, बट जो एक्चुअल में टैक्स पेमेंट है वो 3 से 4 करोड़ लोग ही कर रहे हैं, बाकी लोग ये टैक्स का पेमेंट नहीं करते. इंडिया का पॉपुलेशन जैसे एज ऑफ नाउ आपको पता होगा, इट इज ऑलमोस्ट 130 करोड़. एंड अब अगर आपको पता है कि नेक्सस जो इंडिया में जो फाइनेंस का नेक्सस है, कि एक जो टैक्स जो इंसान कमाता है, जो कॉर्पोरेट हो गया या इंडिविजुअल हो गया या कोई भी बिजनेस हो गया, उसको गवर्नमेंट को टैक्स देना है. अब गवर्नमेंट को टैक्स क्यों देना होता है, क्योंकि आपको सभी लोगों को बेसिक इकोनॉमिक्स में पता ही होगा कि गवर्नमेंट को सारे पब्लिक एक्सपेंडिचर्स का ध्यान रखना होगा.
पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी कि डिफेंस हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एंड बहुत सारी और भी बहुत सारी फैसिलिटीज है जो गवर्नमेंट हमें सिटीजन को प्रोवाइड करती है. To maintain them, to upgrade them, to make it feasible for us, they required funds, and that funds are required through that funds are fulfilled through various taxation. जैसे इंडिया में अगर ब्रॉडली क्लासिफाई करने जाएंगे तो आप मुझे बता सकते हो कि कितने टैक्सेशन है. If you want to broadly classify that how many types of taxation are there in our country. Type पूछा है, taxes नहीं पूछा है मैंने. So yes, please post how many type of umbrella कितने taxation का है हमारे country में. Two type, okay. Yes, you can name them as well. आप उसका नाम भी दे सकते हो. Yes, direct and indirect tax. Correct. So yes, direct tax है, indirect tax है. ये जो टैक्सेशन है इंडिया में वर्क करते हैं. ना डायरेक्ट टैक्स है जो डायरेक्टली चार्ज किया जाता है आपके इनकम के ऊपर. सो इट इज डायरेक्टली चार्ज्ड ऑन योर इनकम, दैट इज कॉल्ड एज इनकम टैक्स. वेयरएज इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स है जो इनडायरेक्टली आपको कहीं ना कहीं से कलेक्ट करती है गवर्नमेंट. एंड सो इट इज दैट इज अ जीएसटी. अगर आज के टाइम पे अगर कॉमन एग्जांपल लिया जाए तो जीएसटी है. पहले काफी सारे थे, वैट थे, सर्विस टैक्स थे, एंड एक्साइज थे. सो ये सभी चीज हम देखेंगे आगे के लेक्चर्स में जब हम जीएसटी स्टार्ट करेंगे at that particular point. So now what is income tax return? So very very important to understand. सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न क्या है. तो देखो, कोई भी चीज अगर आप स्टार्ट करते हो, पढ़ाई स्टार्ट करते हो, एज अ सीए स्टूडेंट एज वेल, जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ तो आई गो फ्रॉम द बेसिक. अगर आपका बेस क्लियर है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कोई भी डिफिकल्ट सम या कोई भी डिफिकल्ट प्रैक्टिकल लाइफ में अगर कोई क्वेरी आती है आपके कोई क्लाइंट की या आपके ऑफिस प्लेस के, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. आई ऑलवेज से स्टिक टू लॉ, यानी कि जो कानून बोलता है वही आप बात को इंटरप्रेट करो. बाकी गूगल क्या बोलता है या कोई फलाना आर्टिकल क्या बोलता है उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है. यू हैव टू लुक आफ्टर. No, Shruti, where the important points will be there, I will tell you to note down at that particular time. But we do provide a soft copy of the notes, so no need to worry about that. So whatever the important part, at that time I will inform you. Okay. So जैसे कि as I was saying, okay. So हाँ, तो कोई भी कानून है उसका बेस अगर आपको पता है तो आप कोई भी टैक्सेशन अच्छे से फॉलो कर सकते हो. तो वैसे ही अगर आप इनकम टैक्स में अच्छा प्रैक्टिस करना चाहते हो, अच्छे क्लाइंट्स बिल्डअप करना चाहते हो, अभी ये साल तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है. मैं आपको सच्ची बोलता हूँ, भले पोर्टल कितना भी स्लो चल रहा है या चल नहीं रहा है, रिटर्न नहीं अपलोड हो रहे, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, बहुत सारे इश्यूज है. आई नो देयर आर ऑलमोस्ट 30 to 45 issues that has been raised by Maharashtra tax practitioners to the CBDT, that is Central Board of Direct Tax. यानी कि जो डायरेक्ट टैक्स का जो सेंट्रल बॉडी है, सेंट्रल बॉडी जिसको सीबीडीटी बोलते हैं, जो सारे कानून इनकम टैक्स में चेंजेस करते हैं, तो उनको लेटर लिखा गया है कि पोर्टल को जल्द से जल्द ठीक करो. अब हो क्या रहा है, काफी लोगों का रिटर्न अपलोड तो हो रहा है बट एक्नॉलेजमेंट नहीं जनरेट हो रहा है. सो देयर आर लॉट ऑफ मेनी इश्यूज. सो वी आर एज ऑफ नाउ हम हमारे कोई क्लाइंट के रिटर्न्स को फाइल नहीं कर रहे हैं, बिकॉज एक ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने के लिए हार्डली 10 मिनट लगता है. बट अभी के सिचुएशन के हिसाब से 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, कुछ नहीं बोल सकते कितना टाइम जा रहा है. ओके, सो बहुत ही अर्जेंसी केस वाला रहेगा, जिसको एकदम ही लोन के लिए जरूरत है, उसके ही हम रिटर्न ट्राई कर रहे हैं, और हम गारंटी नहीं देते कि अपलोड होगा कि नहीं होगा, एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगा कि नहीं होगा. सो द क्लाइंट्स हैव टू नाउ कीप द पेशेंस इन दैट. सो आपके लिए अपॉर्चुनिटी ऐसा यहाँ पर ऐसा है कि अभी ना बहुत सारे सेल्फ फाइलिंग करते थे. जैसे हमारे क्लाइंट्स भी बहुत सारे स्मार्ट होते थे कि कभी 1-2 साल हमसे फाइल करवाया, थोड़ा बहुत टैक्स का नॉलेज आ गया, यूट्यूब पे या कहीं पे भी वीडियोस देख के वो खुद से फाइलिंग करते थे, क्योंकि पहले पोर्टल थोड़ा इजी था.
ठीक है। अब पोर्टल थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, मैंने खुद ने देखा है, तो काफी काफी इसमें चेंजेस है, टेक्निकल चेंजेस है, बहुत सारे लॉ के भाषा उसमें आ चुके हैं। सो वहां पे क्या होता है, वो इंसान घबरा जाता है, क्योंकि इतने साल तक वो खुद से फाइलिंग करता था, सॉफ्टवेयर कंपनीज के हो गए या साइंस बैकग्राउंड से हो गए, ठीक है, कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे, थोड़े बहुत नॉलेज होगा, वो कर भी लेंगे, बट जो इंजीनियर्स होते थे स्पेशली, वो खुद से फाइल करना चाहते थे, कि उनको लगता था इजी काम है, बट ऐसा नहीं है। जब उनको नोटिस आती है तब उनको पता चलता है कि कितने डिफिकल्टीज आ जाती है। सो अब पोर्टल चेंज होने से ये हो गया है कि जो खुद से फाइलिंग कर रहे थे, वो अब सीए ढूंढेंगे, या टैक्स प्रैक्टिशनर ढूंढेंगे, या टैक्स कंसल्टेंट ढूंढेंगे, कोई ना कोई वो पर्टिकुलर पर्सन ढूंढेंगे फॉर फुलफिलिंग देयर इनकम टैक्स रिटर्न। ओके, अब मैं 2030 की बात करूं, अब मैं 2030 की बात करूं कि 2030 में क्या होने वाला है। अब मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ, अगले 3 साल में ये जो 5 से 6 करोड़ लोग जो इनकम टैक्स, 6.5 करोड़ लोग जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, इसकी संख्या है वो बढ़ने वाली है, इसके नंबर से वो बढ़ने वाला है, 8 से 10 करोड़ होने वाला है। और 2030 तक ऐसा माना गया है कि इंडिया में 20% लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। 20% यानी कि बहुत छोटा अमाउंट होता है, ठीक है। अगर मैं 100 करोड़ का भी 20% करूं, चलो मैं 130 नहीं पकड़ता हूँ, 100 करोड़ ही पॉपुलेशन पकड़ता हूँ, 20 करोड़, अगर मैं 20 करोड़ लोगों का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। अब 20 करोड़ का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आज के टाइम पर पूरे कंट्री में 1 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और 50 से 60 हजार टैक्स कंसल्टेंट है जो प्रैक्टिस कर एक्टिवली, ठीक है। ऐसे तो 3.5 से 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बट काफी रिटायर हो गए, काफी जूने भी हो गए, तो अभी उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दिया, और 50% लोग जॉब करते सी, ऑलमोस्ट 60% पीपल ऑफ फॉर जॉब। सो अब ये अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत काफी बड़ी है। अगर 6 करोड़ क्लाइंट्स के लिए आज 1.5 करोड़ चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्स कंसल्टेंट कम पड़ते हैं, तो जब ये 20 करोड़ होगा, जब 6 करोड़ से ये 20 करोड़ होगा, तब रिक्वायरमेंट होगी आप लोगों की। आप लोगों को वो गैप फुलफिल करना है। वो गैप को कैसे फुलफिल करेंगे, कैसे आप अभी से क्लाइंट, देखो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि जॉब छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो और फुल फ्लेज प्रैक्टिस करो, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपका अच्छा बैकग्राउंड है, आपके फैमिली में अच्छा सपोर्ट है, क्या इवन आप सीए के इंटर स्टूडेंट हो या सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हो, अगर आप प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हो, ग्रेट टाइम है। 1 क्लाइंट, 2 क्लाइंट, 3 क्लाइंट, अब मैं आज बताऊंगा क्लाइंट कैसे बिल्ड करना है, ठीक है, रिलेशन कैसे बिल्ड करना है, ठीक है। नॉलेज तो देखो हमें लेना ही है, अगले 70 घंटे नॉलेज लेना ही है, वी हैव टू टेक द एब्सोल्यूट नॉलेज, ओके। बट वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज द टैक्टिकल, द मार्केट सिचुएशन, आप कैसे मार्केट सिचुएशन को टैकल करते हो। तो चलो बेसिक बेसिक चीजें देख लेते हैं, एंड उसके बाद आई विल मूव हाउ यू कैन improve your tax practice or how you can start your tax practice. So income tax return filing is an annual statement which is filed by a person against the income earned during the financial year. यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कुछ नहीं है, पूरे साल का पूरे साल का जो भी एनुअल स्टेटमेंट है, पूरे साल का जो हिसाब किताब है कि कितना कमाया, कितना क्या हुआ, कितना एक्सपेंसेस हुए हैं, तो उसके हिसाब से जो भी प्रॉफिट होता है या जो भी सैलरी अर्न होता है, वट एवर द इनकम दैट यू हैव, दैट वी हैव टू गिव दैट फिगर्स टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट थ्रू फाइलिंग द इनकम टैक्स पोर्टल। सो इनकम टैक्स पोर्टल पर जाके हमें इसको अपलोड करना होता है। अब अपलोड करने का काम थोड़ा ऐसे ऐसे देखा जाएगा तो इजी है। देखो नॉलेज है तो आप कुछ भी कर सकते हो, मैं तो इतना ही बोलता हूँ, नॉलेज इज किंग ऑलवेज। ओके, सॉफ्टवेयर कितना ही चेंज होने दो, अगर आपके पास नॉलेज है ना, तो आप कोई भी काम कर सकते हो। ओके, नाउ व्हाई इट इज नेसेसरी टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न। नेसेसरी इसके लिए क्योंकि हम हमारे कंट्री में रहते हैं और गवर्नमेंट को पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए पैसा चाहिए। सो पब्लिक एक्सपेंडिचर का एक शेयर होता है, वो इनकम टैक्स के थ्रू फुलफिल होता है। सो इनकम टैक्स इज पेड इटसेल्फ बाय द इनकम टैक्स रिटर्न, स्टेटिंग दैट इनकम टैक्स, यानी कि जो भी हमारा इनकम है उसके अकॉर्डिंग उसका टैक्स कैलकुलेट होता है और उसके हिसाब से हमें टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न क्या है, एक एनुअल स्टेटमेंट है, पूरे साल का जो भी हिसाब किताब हुआ है उसको हमें गवर्नमेंट को सबमिट करना है, उसके हिसाब से जितना टैक्स बनता है वो टैक्स भी हमें उसके साथ साथ पे करना है। और टैक्स कहाँ पे यूज होगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए यूज होगा। यानी कि आपको खुश होना है, आपके एरिया के अगर स्ट्रीट लाइट चल रही है, रोड का काम हो रहा है, शायद आपकी वजह से हो सकता है, आपने इनडायरेक्टली इनकम टैक्स को कंट्रीब्यूट किया है और वो गवर्नमेंट उसको वहां पे यूज कर रही है। सो दैट प्राइड यू कैन टेक बाय योरसेल्फ। नाउ अच्छा,
who are liable to file income tax return. So I will just a request to my existing students कि आप आंसर मत दो, नए स्टूडेंट्स को आंसर देने का मौका दो. Okay, I know your name, so मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं, but yes, so yes, बाकी लोग please everyone must participate, those who are joining for the first day or the second day. So who are liable to file the income tax return, यानी कि income tax return अगर आप इंटरव्यू में जाते हो तो आपको पूछा जाएगा व्हाट इज बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, या तो आपको ऐसा पूछा जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कब कंपलसरी हो जाता है, व्हेन इट इज कंपलसरी और व्हेन यू आर लायबल टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न. तब क्या जवाब दोगे? वॉट एवर यू नो, जो भी आपको नॉलेज है, राइट है, रॉन्ग है, आपको बेझिझक आंसर करना है. You have to just answer it whether it is wrong or right. Don't have a second thought on that, because you are came here to learn new things. So नए things हम तभी सीखते हैं जब आप mistake करते हो. So do mistake and take maximum knowledge from VD learning. Okay, about 2.5 lakhs. Okay. Maybe when your salary is above lakhs, then we have to pay the tax. Who is having a basic exemption limit? So about 2.5 lakh. Yes. So I'm getting different answers. Just आपका point of view आप रख सकते हो chat box में. $5 lakhs. Okay. सो अगर आपको आज के बाद कभी भी किसी ने पूछा गया कि इनकम टैक्स, जैसे आपके क्लाइंट ने पूछा इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कब करना कंपलसरी हो जाता है, देखो टैक्स पेमेंट करना आ रहा है नहीं आ रहा है वो सेकेंडरी है. इनकम के हिसाब से इनकम टैक्स जो फाइलिंग है वो कंपल्शन हो जाता है व्हेन योर ग्रॉस टोटल इनकम, ओके, व्हेन योर ग्रॉस टोटल इनकम दैट यू हैव अर्नड ड्यूरिंग द एंटायर फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में आपने जितना भी पैसा कमाया, अगर वो उसका ग्रॉस अमाउंट, यानी कि जो ग्रॉस टोटल इनकम है, जो हम आगे देखेंगे ग्रॉस टोटल इनकम मतलब क्या होता है, यानी कि अभी के लिए आप समझ लो एनुअल इनकम. अगर पूरे साल का इनकम अगर आपका 2.5 लाख के ऊपर है, दैट इज 2.5 लाख रुपीस, देन यू हैव टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न कंपलसरी. टैक्स आ रहा है नहीं आ रहा है वो सेकेंडरी मैटर है, बट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है, इट इज कंपलसरी है. तो आप अवेयरनेस भी ला सकते हो. अगर आपके पास पैन कार्ड है और आपका इनकम 2,50,000 के ऊपर है तो आप लायबल हो एज पर इनकम टैक्स रूल. हालांकि बहुत जन उसको इग्नोर कर देते, नहीं करते हैं, सोचते हैं टैक्स नहीं आ रहा है तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना होता. ऐसा नहीं है. लोन पर्पस, वीजा पर्पस, पॉलिसी, बड़ी बड़ी इंश्योरेंस की पॉलिसीज लेनी होती है, तब एजुकेशन लोन हो गया, ये तभी तभी 3-3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न लगते हैं. भले आज आपको एडुकेट करना है आपके क्लाइंट्स को या आपके फ्रेंड्स को कि भले आज अगर आपका रिटर्न इनकम अबव 2.5 लाख या 2 लाख के आसपास है तो भी रिटर्न फाइल करो. जीरो इनकम है तो भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हो, उसके लिए गवर्नमेंट ने कोई ये लिमिट नहीं रखा है, आप फाइल बिंदास कर सकते हो. बट अब काम क्या होता है, जब भी आप लोन लेने जाते हो स्पेशली, तो 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न्स मांगते ही आज के टाइम पे कंपलसरी है. आज के टाइम पर 1 साल में एक ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है. सो यू हैव टू एडुकेट देम, यू हैव टू टेल देम कि ऐसा ऐसा है. सो आप ध्यान रखो. तो अभी मेरे पास भी बहुत क्लाइंट आते, ठीक है, अब इतने क्लाइंट्स आए हैं, सो उनको मैं बोलता था कि 2-2, 3-3 साल का जब हो रहा था फाइलिंग कि कर लो. अब यह काफी लोग इंक्वायरी करके जाते हैं, फिर वापस फोन नहीं उठाते और बोलते हैं नहीं हमारा इनकम बिलो है, बिलो 2.5 लाख है. सो हमें इनकम या अबव 2.5 लाख है बट हमें टैक्स भरने को नहीं आ रहा, तो हमें रिटर्न नहीं फाइल करना है. बट आज वही लोग मुझे फोन करते कि अभी 3 साल का एक साथ करके, तो अभी नहीं होता. ठीक, एक ही टाइम पे 1 साल का ही हो रहा है रिटर्न फाइलिंग. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू उनको बताना आपका जिम्मेदारी है कि देखो आप 2 साल के बाद या 3 साल के बाद आओगे, मैं आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगा, कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा. ठीक है, मार्केट में से मिलते हैं जो बैक डेटेड रिटर्न फाइल करके देते हैं, यानी कि पिछला तारीख डाल के वो आपको रिटर्न बना कर देंगे, बट वो फेक रहता है, फॉर्जरी रहता है, उसका कोई वैलिडिटी नहीं होता है, खाली क्लाइंट का पैसा जाएगा. तो ये भी उनको पहले ही आपको बता देना है कि दैट अगर इफ यू आर अर्निंग इनकम मोर देन 2,50,000, यानी कि पूरे साल का इनकम अगर 2,50,000 के ऊपर है तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है.
Is it clear? I can move to the next part. Yes, please let me know in the chat box, anyone, if you have any questions still here. ओके, सो मैं क्या कर रहा हूँ आज आपको ज्यादा टिप्स दे रहा हूँ कि क्लाइंट कन्वर्जन कैसा होता है, ठीक है। क्योंकि ये सारे डिफिकल्टीज मैं 5 से 6 साल से फेस करते आ रहा हूँ। सो आई एम गिविंग यू अ कंसोलिडेटेड आंसर, और इससे बहुत क्लाइंट कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आप ऐसे जो उनको बोलना है, देखो बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट है, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, डिपेंडिंग अपॉन द इनकम क्राइटेरिया। तो उनको ये बताना है कि देखो आपको लोन तो 20-30 लाख का लेना होगा, जब बट जरूरत होगा तब आप नहीं कर पाओगे, तो बेटर आज आप इन्वेस्ट उसको करो। ओके, देन मूविंग टू द फर्स्ट पार्ट नाउ। अब जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जो नए पोर्टल का, थोड़ा सा चेंज, इतना चेंज नहीं है। आई विल टेक यू टू द पर्टिकुलर पार्ट। ओके, लोन वाला पार्ट जो है, यानी कि अगर आपको लोन लेना है, एजुकेशन पर्पसली, एजुकेशन लोन हो गया, होम लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्ड होना चाहिए। मीन्स ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल सेट शुड बी देयर। तो पूरा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। सपोज अभी अभी करंटली 1 साल का ही होता है फाइलिंग। सो अगर कोई नया क्लाइंट है तो बोला लोन पर्पस में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते, तो अब 1 ही साल का होगा, लोन पास नहीं होगा उसका, ठीक है। मिनिमम तो 2 ही लगता है। अगर आपको नेशनलाइज बैंक में चाहिए लोन तो 3 साल का है, जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है। अगर आप नेशनलाइज बैंक में लोन लेते हो तो 7% या आज के टाइम पे रेट चालू है, बट 3 साल का आईटी रिटर्न लगता है। अगर वही 2 साल का आईटी रिटर्न है, फिर छोटे बैंक में जाते हो तो वहां पे 8%, 9%, तो वो बहुत भारी पड़ता है, ठीक है। ईएमआई में सीधा 3-4 हजार का फर्क आ जाता है, और पूरे साल का देखा जाएगा तो 30-40 हजार का फर्क आ जाता है। सो ये डिफिकल्टीज होती है। ओके, नाउ हाउ इज द प्रोसेस ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग? प्रोसेस कैसे स्टार्ट करना है? सबसे पहले यू हैव टू डू द अकाउंटिंग, एंटायर ईयर का अकाउंटिंग करना है। सो इट इज द सेल्स की एंट्रीज हो गई, डेटा एंट्रीज हो गई, परचेज की डेटा एंट्रीज हो गई, देन रिसिप्ट, पेमेंट, एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। ये एक बिजनेसमैन के लिए हो गया। सैलरी के लिए कोई इतना अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। बेसिक का आप बेसिक चीजें कर लो आप, जैसे कि फॉर्म 16 है, बैंक स्टेटमेंट से इनकम साइड कैप्चर कर लो। यानी कि फॉर्म 16 क्या होता है? एक एनुअल स्टेटमेंट होता है जो एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है। यानी कि जहां पर आपका क्लाइंट काम करते हो या आप भी काम करते होंगे, आपको सैलरी स्लिप मिलता होगा या फॉर्म 16 मिलता होगा, तो उसके बेसिस पे आपको एनुअल इनकम फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है वो हम इनकम फ्रॉम सैलरी हेड है जो फ्यूचर में देखने वाले हैं, उसमें हम इन डिटेल में देखेंगे, तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू एक्यूमुलेट द डेटा। अकाउंटिंग का डेटा आपको एक्यूमुलेट करना है। फिर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेशन हो गया या कंप्यूटेशन ऑफ इनकम हो गया। देखो, ऑनलाइन जाकर अपलोड करना, गवर्नमेंट के सॉफ्टवेयर में डेटा को फिल अप करना, कोई भी 10वीं का भी बच्चा कर सकता है। सॉफ्टवेयर है, डेटा एंट्री करना है, सिंपल है, बट वो डेटा को बनाना सबसे बड़ा मेहनत है। एंड वो कैसे हो पाएगा? इट विल बी ओनली एंड ओनली थ्रू कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। अब कंप्यूटेशन इनकम का मतलब क्या होता है? दैट इज एन एवरीथिंग अबाउट दैट टैक्स पेयर, जो भी उसने पूरे साल में उसका पूरा हिसाब किताब, उसका जो भी इनकम है, जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी उसके इन्वेस्टमेंट्स है, जितना टैक्स है, टीडीएस है, उसका एज है, फैमिली इन्वेस्टमेंट्स है, सभी चीजें एक पीस ऑफ पेपर पे या एक पीस ऑफ एक्सेल शीट पे आ जाती है। एक एक्सेल शीट पे हर एक चीज एक्यूमुलेट हो जाती है, कंसोलिडेटेड हो जाती है, यानी कि इकट्ठा हो जाती है। तो उससे क्या होता है? आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में इजी होता है। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पोर्टल पर जाके बहुत इजी है, ठीक है। अगर मैंने आपको नहीं भी सिखाया ना, मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आप खुद से कर पाओगे, ठीक है। बट नो, वी विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, ऑनलाइन मेथड भी, ऑफलाइन मेथड, सब कुछ चीज डिटेल में देखेंगे। बट जो इंपॉर्टेंट है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। आज भी अगर मेरे ऑफिस में कोई नया ट्रेनी ज्वाइन होता है तो उसको मैनुअल हम पहले देते हैं कि मैनुअल कंप्यूटेशन बना के दिखाओ। अगर मैनुअल कर पाया ना तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर कर सकते हो, गारंटेड, ठीक है। सो मैनुअल आना इंपॉर्टेंट है। अब बहुत लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट सॉफ्टवेयर पे सीखते हैं। अगर गलती से किसी ने उसको मैनुअल पूछ लिया इंटरव्यू में, नहीं कर पाएगा, 101% नहीं कर पाएगा। सो कंप्यूटेशन के कंप्यूटेशन पूरा प्रिपेयर हो गया, उसको फिर गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर में फिलअप करना है, वेदर वो ऑनलाइन मेथड होगा या ऑफलाइन मेथड होगा।
ऑनलाइन मेथड यानी कि क्या, पोर्टल पे जाके लॉगिन करना है, सीधा क्लाइंट लॉगिन होता है, यहाँ पे पर पर्सन पर लॉगिन होता है। समझो अगर मेरे 300 क्लाइंट है, हर एक 300 क्लाइंट का इंडिविजुअल लॉगिन होता है, उनका ही पैन कार्ड का जो यूजर आईडी उनका पैन कार्ड होता है, पासवर्ड वगैरह क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम रजिस्ट्रेशन पोर्टल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन डिटेल में देखेंगे। तब अब होगा क्या कि हर एक क्लाइंट के अलग इंडिविजुअल लॉगिन आईडी पासवर्ड है, उसमें आपको लॉगिन करना है। कोई सीए का अलग से लॉगिन होता है बट कोई यूज नहीं करता है, क्लाइंट का ही यूज करता है, क्योंकि क्लाइंट ही खुद उसका रिटर्न फाइल कर रहा है। ठीक है, आप तो उसको खाली फैसिलिटेट कर रहे हो, आप उसको खाली मदद कर रहे हो। सो वन इज ऑनलाइन मेथड, यानी कि ऑनलाइन में लॉगिन किया, डेटा फिलअप किया और सबमिट कर दिया। ऑफलाइन क्या होता है कि एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया, सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीजों को फिलअप किया और फिर उससे एक जेएसएन फाइल, पहले एक एक्सएमएल फाइल हुआ करता था, अब वो जेएसएन फाइल हो गया। अब जेएसएन फाइल को अपलोड करना है और रिटर्न को सबमिट करना है पोर्टल पर जाके। तो देखो ये पूरा एंटायर प्रोसेस होगा, हमारे जो लेक्चर्स है यही फ्लो में चलने वाले हैं। सो दे आर गोइंग टू इनटू दिस एंटायर फ्लो। बहुत लोग अगर आप मुझे बोलोगे कि डे 1 पे ही मुझे डायरेक्ट पोर्टल पे रिटर्न फाइलिंग करना सिखाओ, नहीं, वो नहीं हो पाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे और कुछ नहीं समझेगा आपको। ठीक है, जो मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स है ऑलरेडी, जो शायद मीटिंग में है, दे कैन टेल कि हाउ द बेसिक वाज इम्पोर्टेंट फॉर देम, कि जो उसके पहले का जो थियोरिटिकल पार्ट है वो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑनलाइन पे जाके काम करना बहुत ही इजी है। जो द मेन वर्क है तो दैट इज द ग्राउंड वर्क, दैट इज द बैकग्राउंड वर्क। ओके, नाउ ओके, सो रेस्ट अदर थिंग्स वी विल सी इनटू द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज देखो आपका फर्स्ट लेक्चर था, हाँ, बट आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको बोला था कि लास्ट में बताऊंगा, दैट इज हाउ टू स्टार्ट योर इनकम टैक्स प्रैक्टिस और एनी प्रैक्टिस। ओके, एंड उसको कैसे स्केल अप कर सकते हो, स्केल अप यानी कि कैसे आप इसको इंक्रीज कर सकते हो, किसे बढ़ा सकते हो। अगर आप फ्रेशर हो, सीए स्टूडेंट हो, बीकॉम पास हो, जस्ट नो, देखो, नो, विनमैन इज नॉट इंक्लूडेड प्रदीप जी, बिकॉज आज इंडिया में कम से कम टैक्सेशन रिलेटेड 15 सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो हर एक सॉफ्टवेयर का वर्किंग कंडीशन अलग है, हर एक के अलग अलग फीचर्स है, तो कोई अलग अलग यूज करता है। तो इट इज अगर मैं आपको सो अभी मैं कोई हम जो सिखाएंगे गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर सिखाएंगे जो यूनिफॉर्म है, जो सभी लोग यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसके लिए कोई पैसा नहीं देना है गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर के लिए। विनमैन अगर आप लोगे तो 4 से 5 हजार का उसका कॉस्टिंग होता है। एंड विनमैन इज ऑल्सो, देखो सारे सॉफ्टवेयर में वही बोल रहा हूँ आपको, कोई भी सॉफ्टवेयर आप इजीली ऑपरेट कर पाओगे until and unless you have the knowledge. Okay, now yes, so the best part comes, that is how to scale up your business or how to start your business, whether आप CA student हो, BCom student हो, whether you are already into the field from last 4 to years, 5 years, 10 years, 11 years, there is no age, there is no as such until you have a exact knowledge about that. Okay, सो सभी लोगों को सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप आपका व्हाट्सएप ओपन कीजिए, सभी लोगों के पास व्हाट्सएप ऐप होगा। सो आप जैसे व्हाट्सएप ऐप ओपन करते हो, वहां पर 3 डॉट्स आते हैं, सॉरी 3 डॉट्स नहीं, आपको यहाँ पे व्हाट्सएप जैसे आप ओपन करोगे, बिलो डाउन द बिलो ऑन द राइट हैंड साइड आप एक चैट बॉक्स देखोगे। ठीक है, चैट बॉक्स के ऊपर एक चैट बॉक्स होगा, वहां पर आपको नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट दिखेंगे कि आपके व्हाट्सएप में कितने लोग जुड़े हुए हैं। सो यू कैन पोस्ट दैट नंबर, आप वो नंबर पोस्ट कर सकते हो चैट बॉक्स में। सो व्हाट्सएप ओपन करना है, राइट साइड कॉर्नर में आपको एक चैट का टेक्स्ट का एक बटन दिखेगा, उसको क्लिक करोगे, टॉप पे आपको कितने नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट जो आपसे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए। सो आई एम गेटिंग द नंबर्स। ओके, ऑलरेडी स्टार्टेड गेटिंग द नंबर्स। Okay, so for 294, 245, why I am telling you that, आपको इससे काफी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, 600, 200, 350, ओके ओके,
ओके, सो ग्रेट। सो अब क्या करता हूँ ना, मैं एक एवरेज पकड़ लेता हूँ, ठीक है। सबने अलग अलग नंबर दिया, किसने 600 दिया, किसने 300 दिया, किसने 500 दिया, किसने 200 दिया। अब मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पर्सन यानी कि मैं बहुत ही, जब भी इनकम की बात आती है, एक्सपेंस की बात, एक्सपेंस sorry, I just got disconnected due to some fluctuation in connection. So I'm back, I guess. My voice is audible. Okay, now I hope everything is fine. So मैं क्या कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, थोड़ा सा कनेक्टिविटी फ्लक्चुएशन इशू दे रहा है, so I am switching off my video. Okay, so yes, so as I was, so हम बात कर रहे थे related to the number of contacts. So ठीक है, as I am a very much optimistic person, so मैं आपको यहाँ पर कोई ज्यादा बड़े फिगर्स नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलो Hi everyone, just bear us with a minute or so. Only because of some internet fluctuation, we are facing this problem. Just give us a minute. okay, so now I hope the voice is clear for everyone. So is it just one or two people? Just post your consent into the chat box so I can continue. Okay, sorry for the interruptions, you know, I can't help with this because ये हम मेरे कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है। अब ऐसा यूजुअली होता नहीं है, बट आई डोंट नो व्हाई टुडे इज गिविंग सो मच इशू। ओके, सो नाउ मूविंग अहेड कि जैसे मैं बात कर रहा कि आपके 300, यू नो, यू हैव 300 क्लाइंट, 300 व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स। सपोज यू हैव अराउंड फेसबुक फ्रेंड्स, अगर मैं एज्यूम करता हूँ, देखो आज के टाइम पे 400 फेसबुक फ्रेंड्स मिनिमम किसके भी होते हैं, ठीक है। इन यू ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म समझो, वहाँ पे 100 लोग आपको फॉलो करते हैं अप्रोक्सीमेटली। सब जगह अगर कॉमन ऑडियंस भी रहती है, बहुत जगह पे वही लोग रहते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली अगर समझो आप यू नो खाली 500 पीपल को जानते हो, ठीक है। ये 800 है ना, ज्यादा ज्यादा होगा, बहुत लोग बोलेंगे इतना नहीं है, ठीक है, चलो 500 लेते। फ्रेंड्स रिलेटिव सब मिलाकर 500, आप 500 लोगों से आप जुड़े हुए आपके पूरे यू नो लाइफ के जर्नी में अभी तक। अब ये लोग कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला जो है, सपोज इसका मैं ना, अगर आपने 55, अगर आपने एक सिंपल पोस्ट है
डिजिटल पोस्ट है, अगर आपने डिजिटल पोस्ट क्रिएट किया, ठीक है, सो अब क्या है डिजिटल पोस्ट में आपको इतना लिखना है, आई हैव, आपके ऑर्गेनाइजेशन का पहले सबसे पहले नाम डिसाइड कर लो, ठीक है। मैं बोलूंगा बेटर है एंड एसोसिएट रखना या एंड कंपनी रखना। एंड मतलब जो भी है, आपको स्टार्टिंग में आपका नाम रखना है, सरनेम रखना है, एंड उसके आगे एंड एसोसिएट या एंड कंपनी, या आप कोई भी कंसल्टेंट, आप कुछ भी नाम यूज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो आप वो नाम पहले डिसाइड कर लो, क्योंकि नाम होना इंपॉर्टेंट है। देन उसमें आप लिखो कि आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। जैसे स्टार्ट करो दैट हाय आई एम आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट I have started my own income tax return filing. So please contact us to file the income tax returns at a reasonable rates or at a discounted rates or whatever, जो भी आप marketing techniques यूज करना चाहते हो। मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप बहुत ही फ्रेशर हो, ठीक है, आपने कभी ऐसा स्टार्टिंग में कभी पोस्ट डाला ही नहीं है, आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसमें से है ना 25 to 30 पीपल विल अप्रोच यू। मैं बोल रहा हूँ इतने लोग नहीं अप्रोच करेंगे, 30 से 40 लोग आपको अप्रोच करेंगे। 30 से 40 लोग आपको सोशल मीडिया के थ्रू अप्रोच करेंगे। फिर आप नेबर्स को बोलो, आप जितने भी फैमिली फंक्शंस, तो देखो मुझे फैमिली फंक्शंस में या कोई गेट टुगेदर में इतना इंटरेस्ट नहीं था, ओके, बिकॉज आई वाज डूइंग माय सीए, परस्यूइंग माय सीए, बट मैं पर्पसली जाता था। फिर क्या होता है, अब आज के टाइम पर हम मिलते हैं कोई अपने पुराने रिलेटिव से या दूर के रिलेटिव से साल में एक बार, तो मिलना जरूरी है, क्योंकि वो आपको जरूर पूछेंगे क्या कर रहे हो आजकल, तो आप बता सकते हो अच्छा मैंने अपना खुद का इनकम टैक्स का रिटर्न का जो भी है, वट एवर यू हैव स्टार्टेड योर ओन टैक्सेशन प्रैक्टिस न्यू बिजनेस। तो ऐसे आपको ऑलमोस्ट 50% आपको आपको टोटल इन टोटलिटी, अगर 20 रिलेटिव्स पकड़ो, 20 फ्रेंड्स, व्हाट्सएप 50 लोग आपको इंक्वायरी करेंगे। मैं बोल नहीं रहा हूँ कि 50 लोग का काम आएगा, आपको इंक्वायरी कर रहे, इसमें से 20% लोग आपके पास काम करवाएंगे, तो यानी कितने लोग, 10 लोग, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का क्या रेट चालू है। व्हाट इज द रेट ऑफ फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न, व्हाट आर द सर्विस चार्जेस that is charged by any consultant or chartered accountant or any person, yes, or the professional fees 750 to 500, okay, nil return होगा तो 500, okay, 1000, okay, पर फाइलिंग में भी 500, ओके। सो अगर मैं आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ, अगर आपको अगेन प्राइसिंग के बारे में पता नहीं है, तो जो इनकम टैक्स जो जो टीयर 1 सिटीज है, यानी कि जो मेट्रो सिटीज है, जहाँ पर मेरे सब जगह पे दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, बैंगलोर हो गया, पुणे हो गया, तो यानी कि सेमी सेमी मेट्रोपॉलिटन और मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, वहाँ पे यूजुअली इनकम टैक्स रिटर्न का जो रेट है वो 750 से स्टार्ट होता है, दैट इज अ सैलरी रिटर्न, ठीक है। बिजनेस इनकम होगा तो 2000, 2500, 3000 से स्टार्ट होता है, डिपेंडिंग अपॉन द योर प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी। बट स्टार्टिंग में आप आपको मैं बोलूँ तो आप 500 रखना सैलरी रिटर्न के लिए, 1500 रखना फॉर द बिजनेस इनकम, बिजनेस रिटर्न्स, ठीक है। धीरे धीरे उसको ईयर बाय ईयर उसको आपको इंक्रीज करना है। एक साथ टीयर 2 सिटीज का 500 और 1000 चालू है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, यस, वही कि जैसे कि टीयर 1 सिटीज है, काफी जगह पे गवर्नमेंट के थ्रू सब्सिडीज मिलती है और वहाँ पे सेंटर्स होते हैं, बट वहाँ पे आपको कंसल्टेंसी नहीं देता है। जैसे आप ई मित्रा प्लेटफॉर्म बोल रहे हो, वहाँ पे फाइलिंग का काम होता है। टैक्स कैसे बचाना, कौन से सेक्शन में इन्वेस्टमेंट करना, ये आपको कंसल्टेंट या सीए ही बता सकता है। तो इसके लिए हम कंसल्टेंसी भी ऐड करके 750,000, दैट इज द मिनिमम फॉर सैलरी रिटर्न। Then if you go ahead for the business starts from 2000 to it, there is no end for the business return, ठीक है। इतना कुछ नहीं है, मैं सीधा एवरेज पकड़ता हूँ, कितना पकड़ रहा हूँ, एवरेज 1000 रुपीज का। तो आपका एक साल का एक सीजन का इनकम हो गया 10,000, दिस इज एन एक्स्ट्रा इनकम, ओके। आपका जो सैलरी आ रहा है उसको आने दो, उसको कुछ नहीं आपको टच करना। अब नेक्स्ट ईयर होगा क्या, दिस इज ईयर 1, ठीक है, दिस इज ईयर 1। ईयर 2 में आपको ये पूरे इनका है ना सब 10 से लोगों का ब्रॉडकास्ट बना दो और साल में कुछ ना कुछ अपडेट भेजते रहो, ठीक है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग हो गया XYZ, उनको प्रिंट आउट निकाल के दो, प्रिंट आउट निकाल के दो, उनके घर पे पहुंचाओ, लिफाफे में एनवलप में पहुंचाओ या फाइल फोल्डर में पहुंचाओ, फाइल कैसे भी पहुंचाओ, कुछ तो थोड़ा बहुत स्टेशनरी के पीछे खर्चा करो, ज्यादा नहीं बट बहुत ही थोड़ा। देन अब यही 10 लोग है ना, आपको जैसे फाइलिंग हो गया तो वो सामने से आपको 10 में से 5 जन तो आपको रेफरेंस देंगे,
बाकी 5 जन को आप बोलो कि मैंने ऐसा ऐसा आप आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भी सजेस्ट कर सकते हो। हर बार, हर महीने, हर 15 दिन में आप स्टेटस अपडेट करते रहो। व्हाट्सएप का स्टेटस हो गया, इंस्टाग्राम का हो गया या फेसबुक का हो गया, कहीं का भी स्टेटस हो गया, उसको आप टाइमली बेसिस पे अपडेट करते रहो। आपको जरूर इन नंबर ऑफ इंक्वायरीज आएंगी। ठीक है, हमारे टाइम पे 5-6 साल पहले इतना कोई सोशल मीडिया का प्रमोशन के लिए, मार्केटिंग के लिए यूज नहीं करता था। वर्ड ऑफ माउथ पे रेफरेंस से काफी बिजनेस डेवलप होता था। तो अभी भी रेफरेंस इज अ स्ट्रॉन्ग टूल। तो नेक्स्ट ईयर में बोलता हूँ ये 20 लोग टोटल हो जाएंगे आपके, ज्यादा नहीं होंगे, 20 होंगे। अगर आपका पहुंच अच्छी है तो 30 भी हो सकते हैं, बट अगेन बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, ओनली 20। ओके, नाउ 1000, नाउ योर इनकम विल गो अप टू 20,000। अब होगा क्या, देखो 50% का हाइक आपको सैलरी में भी नहीं मिलता, बट आपके बिजनेस में 50% इनकम बढ़ गया आपका। हाँ, मेहनत बढ़ गया आपका, नो नो वरीज, मेहनत ऑब्वियसली बढ़ गया आपका इसके अंदर। ठीक है, अब जो है आपका क्रीम ईयर स्टार्ट होता है, दैट इज द थर्ड ईयर। यहाँ तक आपको बहुत ही पेशेंस रखना है। यहाँ पे वही बोलना है कि तू ही भगवान है, कस्टमर को ही बोलना है, क्लाइंट को ही बोलना है, यू आर द गॉड। तुम बोलो वैसे मैं आपको वो रेट में काम करूंगा। बट थर्ड ईयर देखो, 2 साल उसने आपके पास सर्विस लिया, रेट मत बढ़ाओ, बट उससे रेफरेंसेस मांगो। तभी तक आपका सर्कल भी बढ़ गया होगा। अब इवन यू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, यू गो फॉर जिम, स्विमिंग और एनीवेयर, जस्ट प्रमोट योर सेल्फ। देखो आज के टाइम पे एफिलिएशन मार्केटिंग का जमाना है। लोग बड़े बड़े ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं। ठीक है, सो आपका खुद का ही बिजनेस है तो आपको खुद को ही प्रमोट करना चाहिए ना। सो दैट इज द थिंग। सो आप जितने लोगों से जुड़ोगे, बात करोगे, सो नाउ द थर्ड ईयर यू विल हैव अ गुड नंबर्स, ऑलमोस्ट 60। ठीक है, अब हर एक जन दो दो रेफरेंस देना स्टार्ट हो जाएगा। एंड अगेन अभी भी मैं फीस 1000 रुपीज ही रखता हूँ, ज्यादा नहीं रखता हूँ। ठीक है, इफ यू कंपेयर नाउ, सो इट विल गो ऑलमोस्ट 60,000। ओके, इससे साथ साथ ये साल ही फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर हो गया, जीएसटी के छोटे मोटे क्लाइंट्स को एड अप करते जाओ। सो दिस इज द इनकम टैक्स। सो आपके आजू बाजू में किराना शॉप होगा, मेडिकल्स होगा, या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा, या कोई सर्विस इंडस्ट्री होगा, दोस्त होगा, स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, उनसे टच में रहो। भले डायरेक्टली मत बताओ उनको कि हाँ आपके पास कुछ काम रहेगा तो फिर हाय हेलो करो, दोस्ती करो, देन यू प्रमोट योर सेल्फ। देन कम्स जीएसटी। जीएसटी में अगर बोलूँ, स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर में 2 क्लाइंट ही मिले आपको, और हर क्लाइंट का समझो 500 मंथली फीस है, फ्लैट फीस रखो, ज्यादा मत रखो। तो ईयरली 12,000 हो जाएगा। तो पर क्लाइंट 6,000 रुपया, तो 2 क्लाइंट का 12,000 होगा। उसके साथ साथ सब जो बोनस जो है वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन का अगेन यू कैन चार्ज 2,000। तो साल में अगर आपने 3 जीएसटी या 4 जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी किया तो इट विल गो अराउंड 8,000। सो अगेन 20,000 ओवर ईयर। ओके, सो अगर फर्स्ट स्टार्टिंग में आपको यही बिजनेस मिलेगा स्टार्टिंग में। ओके, अगले साल अगेन ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा, यहाँ पे 30,000 हो जाएगा। एंड अगेन सपोज यहाँ पे 40,000 हो, तो मैं ज्यादा इंक्रीज नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे इन टोटालिटी देखे, इन टोटालिटी अगर आप देखो कि जैसे बूंद बूंद से समुंदर या घट, जो भी एक्सपर्ट, जो भी वो मुहावरा है वो परफेक्ट है। थोड़े थोड़े से स्टार्ट करो ना, वो इंक्रीज होगा। एंड 101% नहीं हुआ तो यू कैन एनी डे कॉन्टेक्ट मी, और आप बोल सकते हो कि सर 1 साल से मेरा टैक्स प्रैक्टिस का बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, कैसे ग्रो करूं। तो मैं आपको पूछूंगा कि आप कैसे वर्कआउट करते हो, कैसे प्लान आउट करते हो। दिस इज द थर्ड ईयर। ओके, अब थर्ड ईयर से यू कैन अप्रोच फॉर द टीडीएस क्लाइंट्स एज वेल। टीडीएस क्लाइंट हो गया, अकाउंटिंग हो गया, फाइनलाइजेशन हो गया, उसके क्लाइंट्स भी आप एड ऑन कर सकते हो। तो अगेन अप्रोक्स इनकम ऑफ टीडीएस ओवर ईयर, इट विल गो अराउंड it will go around 1,10,000 or something. Okay, so now in this particular manner, so अब now this is the decision point. अभी आप यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे आप आपके 100 क्लाइंट्स आपको सेंचुरी, देखो सबसे पहले टारगेट बेस काम करना ही करना है। जब मैंने खुद का प्रैक्टिस स्टार्टअप सेटअप किया था, जस्ट आई वाज फ्रॉम अ सीए बैकग्राउंड, ना मेरे कोई फैमिली में सीए था, ना मेरे कोई फैमिली में इतने कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन थे कि जिनका कांटेक्ट हो बिजनेसेस के साथ। नहीं, वेरी सिंपल एंड जॉब करने वाले पर्सन मेरे फैमिली में। तो इतने इतने कोई रेफरेंसेस नहीं मिले। बट मेरे जो स्कूल फ्रेंड्स है, जिम्नेशियम के फ्रेंड्स है, स्विमिंग फ्रेंड्स है, और भी जो वेसिनिटी में आजू बाजू लोग जानते हैं,
तो उनसे स्टार्ट किया। तो मैंने टारगेट रखा था कि 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर मुझे मिनिमम 100 क्लाइंट का डेटाबेस खड़ा करना है। तो आप भी आज टारगेट बनाओ कि आपको कितने क्लाइंट डेटाबेस कितने साल में होना चाहिए। तो मैंने अगले 10 साल के मेरे टारगेट्स को सेट कर दिया रिलेटेड टू माय प्रैक्टिस, रिलेटेड टू माय करियर गोल्स। सो आप करोगे ना, अचीव होगा। और जब जिस दिन आपको 100 नंबर अचीव हो जाएगा ना आपके क्लाइंट्स का, आप फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, कहीं से भी आप मुझे कांटेक्ट करके एक खाली अपडेट कर दो कि नहीं सर मेरा 100 हो चुका है, एंड आपने जैसे बताया था वैसे मैंने उसको प्रोग्रेस किया, एंड वी आर हियर। सो गिविंग देम सर्विसेज, गिविंग देम कंसल्टेंसी। कितना रात को 11 बजे भी कोई फोन किया ना तो डायरेक्ट बिंदास उठाओ। देखो यही टाइम है, स्टार्टिंग में ही आपको टाइम देना है। उसके बाद आप बोल सकते हो कि नहीं भाई ऑफिस आवर्स अभी के टाइम पे फोन करो, बट बिकॉज यू आर डूइंग फॉर योर सेल्फ। ओके, आप दूसरे किसी के लिए नहीं कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो। सो यू कैन टेक आउट ऑफ योर टाइम। Shruti, I will come to that part as well. Just wait for that matter as well. Okay. Okay. So then over the years, suppose अब यहाँ पे अब थोड़ा सा इनकम आप थोड़ा सा अगर आपका एवरेज फीस इंक्रीज करते हो, सीधा इनकम पे इफेक्ट आ जाएगा। सी यू कैन सी जस्ट मैं जीएसटी में ज्यादा नहीं 10,000 ही इंक्रीज किया। So again, it is 1,80,000. So that is approximately a package, annual package of anyone. ठीक है, एक्सपेंसेस होंगे थोड़े बहुत, बट स्टेशनरी के ही होंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, या वो तो ठीक है, घर से ही करो, कोई ऑफिस लेने की जरूरत नहीं है उसके लिए। आई हैड माई ओन ऑफिस 2 years फ्रॉम माई होम ओनली। ठीक है, घर पे ही मेरा ऑफिस था छोटा सा, तो एज सच कोई नीड नहीं है स्टार्टिंग में ऑफिस लेने की। Okay, so this is the, if you are setting your own tax practice, so this way it will go around. Okay, so the thing is you have to give a best service to them, because service industry में वही रूल है, serve your client at best. Okay, जैसे आप कोई होटल में खाना भी खाने जाते हो, अगर किसी ने समझो ना कोई डिश अच्छा नहीं बनाया, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं दिया, XYZ, आप नहीं जाते हो दूसरी बार, या एक दो बार स्किप करते हो, फिर जाते हो, बोलते हो यार इसका नाटक हो गया, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल। सो ऐसा ही होता है क्लाइंट, अगर आप जब बिजनेसमैन हो, अगर आप किसी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, तो उनका भी थिंकिंग वहीं पे वैसा ही हो जाता है। ओके, नाउ फॉर द जॉब एंड द प्रमोशन पर्पस। ओके, फॉर द जॉब एंड द प्रमोशन पर्पस, इफ यू आर अ फ्रेशर हो, you are just a BCom, or for them, how you can magnify the entire CSA program. If you are a fresher, आप CSA प्रोग्राम कर ही रहे हो, चलो सर्टिफाइड स्मार्ट अकाउंटेंट हमारे या VD लर्निंग के थ्रू कर रहे हो, उसके बाद हमारा VD गाइड भी होता है उसके साथ साथ, उसके बाद अगर आपको कुछ भी इश्यूज है, सब जगह होता है VD गाइड, बट जस्ट our own guidance team is there to help you. So we have our own guidance for you, VD is there for you after your entire curriculum course as well. तो फ्रेशर हो, तो आप क्या करो, बेस्ट अगर आपको अकाउंटिंग और टैक्सेशन में आपका करियर बनाना है, बेस्ट मैं बोलता हूँ अगले 2 साल कुछ भी बिना देखे कोई भी सीए फर्म में आप ज्वाइन हो जाओ, कोई भी सीए फर्म में जो आपके घर के पास हो। साथ साथ आप एजुकेशन भी लो, तो एजुकेशन लो यानी कि आप साथ साथ टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ पढ़ाई करो। ओके, यहाँ पर आपको जो सैलरी है ना बहुत आई गेस बहुत कम होगी। इफ एकदम फ्रेशर हो, आप बीकॉम ग्रेजुएट हो, सो 6 to 8,000, ठीक है, नॉट मोर देन दैट इवन इन Tier 1 सिटीज एज वेल। सो Tier 2 Tier 3 सिटीज की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, वहाँ पे तो 5,000 3,000 ही होता है। तो आपको कोई सीए नहीं करना है, बट सीए फर्म में काम करो, बोल दो कोई भी सीए फर्म में आप काम करो, जहाँ पे ऐसे सीए फर्म में काम करो जो जो खुद अकेला हो, ठीक है, उसका कोई पार्टनर ना हो, ना कोई बड़ा फर्म हो, कॉर्पोरेट स्टाइल में नहीं, बहुत छोटा प्रैक्टिस हो उसका, जहाँ पे हर एक चीज आपको सीखने मिले। अब बहुत सारे सीए फर्म्स में, इवन इन मुंबई, बहुत लोगों को खाली 2-3 साल तक जीएसटी डिपार्टमेंट में ही रखा जाता है, या तो इनकम टैक्स में रखा है। तो उससे क्या होता है, आपको लिमिटेड नॉलेज मिलता है। जब छोटे सीए फर्म में अगर आप इंटर, भले सैलरी कम होगा, भले फैसिलिटीज कम होंगे, बट आपको नॉलेज है वो सुप्रीम लेवल का मिलेगा। दैट इज द बाय फार गारंटी फ्रॉम माई साइड। ओके, यहाँ पे आपने 2 साल भी काम किया ना, अप्रोक्सीमेटली कोई भी आप कंपनी में अकाउंटिंग के लिए जाते हो, या कोई बड़े सीए फर्म में जाते हो, अकाउंट्स पोजीशन के लिए जाते हो, सीनियर, आप डायरेक्टली सीनियर अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, एंड दैट सैलरी इज मिनिमम 30,000। ओके, मिनिमम 30,000 बोल रहा हूँ मैं। उसके बाद आपका जितना कैलिबर है, आप उतना टेबल पे उनको सैलरी नेगोशिएशन कर सकते हो। इफ अपने 2 साल में कैसे परफॉर्म किया,
सीए के फर्म में तो आपको काम करना ही है, प्लस उसके साथ साथ आपको साथ साथ सेल्फ लर्निंग भी करना है। तो 30,000 इज बाय मिनिमम, यू नो। उसके बाद जो सिनेरियो होगा, अगर आपने बहुत ही अच्छा वेल परफॉर्म किया, 2 साल 12 घंटे आपने कंटिन्यूअसली काम किया, तो ना आप 45,000 का भी पर मंथ सैलरी फिगर कैसे भी टच कर सकते हो। दिस इज ओनली एंड ओनली पॉसिबल थ्रू द डेडिकेशन, पेशेंस एंड नॉलेज। 3 चीज होना चाहिए, आप इजीली कर पाओगे, ये फिगर्स को अचीव कर पाओगे। इफ यू आर ऑलरेडी वर्किंग, ठीक है, यू हैव experience, suppose you have experience of 2 years or up to 5 years, so this is the entirely best program. I think you know, you might be falling around salary range of, अभी जो आपका salary range होगा मेरे हिसाब से, if I am not wrong, it might be 15 to 25,000. okay, you can correct me if I am wrong in this case. okay, जैसे आप ये करोगे, ठीक है, अब ये you know entirely learning program है, इसके साथ साथ आपको खुद को प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। यहाँ पर तो यू नो आई विल टीच यू एवरीथिंग लाइव, व्हाटएवर जो इनकम टैक्स रिटर्न रिलेटेड फाइलिंग होगा, जीएसटी होगा, टीडीएस हो गया। उसके बाद आपका रोल है कि यू नो ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, आई नो यू हैव द पेन, आई हैव आल्सो द पेन, यू नो हमारे पास एक्सक्यूज, देयर आर 1000 एक्सक्यूज टू गिव इन अ एंटायर डे, बट आपको एनी हाउ रोज 1 घंटा खुद के लिए निकालना है, रोज पढ़ाई करना है। ठीक, इसके लिए हमने बैचेस अल्टरनेट डे स्टार्टिंग में रखेंगे, देन हम उसको रेगुलर बेसिस पे करेंगे, क्योंकि आपको वो यू नो डाइजेस्ट होना चाहिए हर एक चीजें। तो जैसे ही यू नो आप ये 3 महीना जो भी है अप्रोक्सीमेटली, अगर 2 मंथ्स में हो जाता है, बट अगर 3 महीने तक भी जाता है फॉर बाय एनी रीजन, आफ्टर दैट यू कैन श्योरली गिव अप फॉर द इंटरव्यूज। आप इंटरव्यू पे जाओ और बताओ कि मैंने ये पीरियड में इतना पढ़ाई किया, आई नो दिस थिंग, आई नो दिस थिंग, हाउ टू डू दैट, हाउ टू डू दैट। यू कैन अगेन आस्क मिनिमम ओवर ईयर 35 to 40 ओवर। ओके, आई कैन बाय फार गारंटी यू, बट डेडिकेशन आपका होना चाहिए। देखो मैं डेडिकेटली पढ़ाऊंगा, मैं भी सुबह यू नो आई रेज्यूम ऑफिस, तो माय ऑफिस टाइमिंग इज 8 मॉर्निंग, 8 बजे आई टच ऑफिस, देन अगेन शाम को 8 बजे लेक्चर होता है। सो देयर इज अ डेडिकेशन आई एम गिविंग टूवर्ड्स माय वर्क, एंड यू नो एंड आई एम ट्राइंग टू गिव बैक टू द स्टूडेंट। सो मैं आपको रिटर्न देना चाहता हूँ। तो अब आपके ऊपर है कि आप उसको कितने अच्छे से लेते हो, ठीक है। आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, खाली थोड़ा बहुत देख रहे हो, यू नो आप then it will not work for you. You have to yourself work hard for yourself. Yes, you can, no, but if you're a CA student, you can get a articleship. But if you're entirely you know you're from a non CA background, then आपको you know as a trainee join करना पड़ेगा CA firm में। तो उसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन या कुछ नहीं है, नॉर्मल आप एज अ वहाँ पे एम्प्लॉय हो, यू आर अ नॉर्मल एम्प्लॉय ओवर देयर। बट इफ यू आर अ सीए स्टूडेंट, इफ यू आर इनटू सीपीटी, सॉरी अगेन माय बैड, सो इतने साल हो गए सीपीटी को चेंज हो गया, तो दैट इज फाउंडेशन, इंटरमीडिएट। तो अगर आप यू नो अगर आप इंटरमीडिएट क्लियर करके अगर आप आर्टिकलशिप ज्वाइन कर रहे हो, सो दिस कोर्स विल ऑल्सो हेल्प यू। व्हाई? बिकॉज नो फ्रेशर जो आर्टिकल्स होते हैं ना, जिनका इंटरव्यू लेता हूँ ना, तो उनको यू नो बेसिक कंप्यूटर यू नो बेसिक इनकम टैक्स के रूल्स पता होते हैं। बट अगर आपके सीवी पे लिखा हुआ है कि ऑलरेडी यू नो हाउ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, हाउ टू डू जीएसटी अकाउंटिंग, हाउ टू डू जीएसटी रजिस्ट्रेशन, टीडीएस रिलेटेड हो गया, फाइनलाइजेशन रिलेटेड हो गया, अगर ये सारी चीजें अगर आपने लिखा है सीवी पे, तो आपको फार जितने भी बाकी सारे कैंडिडेट्स है, आपका सिलेक्शन का जो चांसेस है वो क्राइटेरिया यू नो इट विल इंक्रीज। okay, then I come to the part those who have 5 years of experience. Obviously आपको तो you know surely promotion तो by far guaranteed है after learning this as well, but you know I will suggest you, अगर आपका 5 साल का प्लस एक्सपीरियंस है तो आपका काफी अच्छा नेटवर्क बन गया होगा अकाउंटिंग फील्ड में, तो ये नेटवर्क को यूज करो। तो एक फेमस कोट है, किसी ने कहा है योर नेटवर्थ इज इक्वल टू योर नेटवर्क, यानी कि जितना आपका बड़ा नेटवर्क है उतना आपका बड़ा नेटवर्थ है। नेटवर्थ यानी कि आपका इनकम। तो जितने लोगों से आप मिलो, यू नो आई हैव ऑडिटेड फ्रॉम लास्ट 11 years, बट आज भी मेरे सार जितने भी अकाउंटेंट्स है जहां जहां पर मैंने ऑडिट किया है, सबका नंबर है। अकाउंटेंट का तो है ही है, वहाँ के ऑफिस बॉय का भी है, वहाँ के कोई दूसरे लोअर एडमिन स्टाफ का भी है, XYZ सभी लोगों के कॉन्टेक्ट डिटेल्स है। देखो
they will surely help you. And आपको वो इंटेंशन से नहीं लेना है कि ये मुझे बिजनेस देगा, बट नहीं, ह्यूमन रिलेशन रखो, आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा. तो 5 years प्लस जिसका भी एक्सपीरियंस है, आई विल टेल यू, you know, that is a now there is a wake up call. You have to do something differently, in a different way. So this was the yes, yes, we will give you the examples to do आपके लिए हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए देंगे, क्योंकि अभी देखो नया पोर्टल चल नहीं रहा है. तो उसके जैसे ही पोर्टल चालू हो जाता है, तो उसके हिसाब से आपको जो भी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स है, जिनका इनकम टैक्स प्रैक्टिकल फाइलिंग बाकी होगा, तो जैसे ही पोर्टल रिज्यूम होता है, we will solve the examples first, and we will give you examples to be solved at your end. यानी आपके एंड पे भी आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने होंगे. ओके, सो दैट्स फॉर माय साइड. देखो, ये तो आज आपका ओरिएंटेशन कम स्टार्टअप लेक्चर था. आई होप यू हैव एंजॉयड, यू हैव टेकन द इम्पोर्टेंट थिंग्स. तो ये सारी चीजें मैं डे 1 पे ही बोल देता हूँ, और बाकी के जो टाइम होगा, दैट इज ओनली एंड ओनली नॉलेज एंड नॉलेज. ठीक है, वहां पर कोई भी बाहर की बातें नहीं होगी. दैट इज ओनली प्योर एकेडमिक नॉलेज ओवर देयर. आपको, हाँ, लेक्चर के बाद आपको पूछना है, आप चैट बॉक्स के थ्रू बिंदास पूछ सकते हो, बट एट दैट टाइम, क्योंकि फोकस हट जाता है फिर आपका. तो द फोकस शुड बी टू ग्रैब नॉलेज. नॉलेज है, इम्प्लीमेंट तो आपको लाइफ टाइम करना है. यस, श्योरली श्रुति, वी कैन लुक आफ्टर दैट. यस, आपका जो भी जोग्राफिकल एड्रेस है, एंड एज पर दैट and as per your requirement, we can find a suitable, or we can help you to find a suitable thing. But I guarantee you, आप खुद से ढूंढ लोगे, and you will flourish into the interview as well. Okay, so thank you, and that's a great to know you each and everyone. So from Wednesday, we are going to start with the core knowledge part, and प्लीज प्रिपेयर एंड कम. सो हाँ, 2-3 चीजें हैं. कैलकुलेटर रखना, नई बुक रखना. देखो, ये छोटे छोटे मुझे सीए स्टूडेंट्स या सीपीटी स्टूडेंट्स या 11-12 कॉमर्स के स्टूडेंट्स को ऐसा बोलना पड़ता है, बट आप लोग काफी समझदार हो. एक पानी की बोतल साथ में लेके रखना, न्यू बुक, कैलकुलेटर, पेन, पेंसिल, एक्सेट्रा. सो आई नो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, यू विल डू बाय योरसेल्फ. ओके, so thank you, and see you until our next live lecture, that is on Wednesday. Till then, take care of your self, and get vaccinated as soon as possible. Thank you once again. Have a good night.